آپ سب کا اس عزت والی بارگاہ میں چل کے آنا قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اس کا اجر کثیر عطا کرے۔ جتنے کم از کم فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں تکلیف نہ سمجھیں، دستے دعا بلند کریں، یہ قبولیت کی بارگاہ ہے۔ جو دعا کسی عبادت میں قبول نہیں ہوتی وہ فرش حسین پہ قبول ہوتی ہے، اس لیے ہاتھ بلند کریں اور الہی آمین کی بھی زحمت کریں۔ ہم ذاکرین آپ ہی کے لیے آتے ہیں۔ میرے مولا بانیان کا یہ تمام ذاکرین کی نوکری، نقیب ممبر کی نوکری، میں حقیر کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر کثیر عطا کر۔ میرے واسطہ محمد وآل محمد کی عزت کا واسطہ میرے سامنے جتنے مرد مومنین سادات و مومنین تشریف فرما ہیں، دور قریب سے چل کے آنے والے بچے، بوڑھے بزرگ جوان، میرے مولا دامن میں کوئی نہ کوئی حاجت حسرت لے کے آتا ہے، میرے مولا تمام کی حاجات کو قبول فرما۔ میرے اللہ واسطہ جناب علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج کا سید سمر عباس سمیت جتنی جھولیاں بے آباد ہیں، مولا ہر ایک کو اولاد نرینہ سے مزین فرما۔ میرے سامنے بڑے خوبصورت چہرے جن میں سید فیاض حسین شاہ صاحب، میری ذات میں ان کی دعاؤں کا بڑا ہاتھ ہے، سید بلال شاہ سمیت، سمر عباس سمیت جو اس کاروان میں شامل ہے، میرے مولا ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما۔ میرے اللہ بے گھروں کو گھر عطا کر، بے زروں کو زر عطا کر، تمام عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ بارہویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا علی زین العابدین علیہ السلام کی نالین مقدس کا صدقہ مجھ سمیت بھائی جان سمیت جہاں جہاں آل محمد کے نام لینے والے ہیں بیمار ہیں، میرے مولا علی زین العابدین کی نالین مقدس کا واسطہ صحت کلی عطا کر۔ اب آپ نے صلوات اس یقین سے پڑھنی ہے کہ دعائیں یہیں قبول ہو چکی ہیں۔ اللہم میری لاکھ مجال کہ میں فرشی عذاب پہ بیٹھے مومنین سے جھگڑا کروں یا ضد کروں، میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن ایک التماس ہے، میں نے کبھی باہر والوں سے نہیں کہا اندر آ جائیں، جو بھی آتا ہے میں اس کے لیے دعا گو ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بیٹھے ہیں یہ مجلس کا ماحول بنائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ میں آپ آ جائیں گے تو آپ کی سوچ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، پڑھ کے آ رہا ہوں، جا کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہم سفر نہیں ہوں گے، میرے حصے کی خیرات داد دعا یقیناً یہاں سے بھی ملے گی، اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کہیں اور سے بھی مل ہی جائے گی، کیونکہ میں سوالی ہوں دہلیز سیدہ کا۔ یہ وہ دہلیز ہے جہاں سے فرشتے بھی آتے ہیں اور خالی نہیں جاتے۔ تو یہاں والے بھی تھوڑا کوشش کریں مجلس میں نظر آ جائیں، بچوں مجلس میں آ جائیں۔ ہاں جی، مل کے ایک صلوات سارے پڑھیں گے تو میں نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے سید آپ کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا ہے، اے آدم حضرت حوا کا حق مہر ادا کرو۔ جب نکاح ہوا نا، بزرگوں سے تائید ہے، نوجوانوں سے داد ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ تو بڑے ہی بیدار ہوتے ہیں، بی بی آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ تو میں نے اب یہ بات اس لیے کی ہے کہ 8 10 12 بندے ایسے ہیں جنہوں نے صلوات کے لیے ہونٹوں کو متحرک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا، بزرگوں سے اللہ نے حضرت آدم سے کہا ہے، آدم حضرت حوا کا حق مہر ادا کرو۔ جناب آدم نے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا، میرے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، دامن خالی ہے۔ ذات واجب کی آواز آئی، 10 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجو، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ اس لیے مل کے صلوات تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، صلوات۔ بہت بڑی بارگاہ ہے مجلس حسین، بہت مقدس جگہ ہے جہاں ذکر حسین برپا ہوتا ہے۔
میرا اللہ آباد رکھے ہر اس گھر کو، ہر اس نگر کو، ہر اس گلی کو، ہر اس محلے کو جہاں جہاں بھی بطول کے لاڈلے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، آپ سلامت رہیں، ماتمی زندہ باد، علی کے چاہنے والے سلامت رہیں۔ جس کا ذکر نسلوں کی اداسی دور کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اٹھے ہوئے ہاتھوں کا شکریہ۔ جس کا ذکر، بس بی بی آپ کو شفا دیں گی، آپ جس اطمینان سے ذکر میں بیٹھے ہیں اور بول رہے ہیں، باتیں بھی میں نے شفا والی کرنی ہے۔ پہلی بات میں نے کی ہے، جس کا ذکر نسلوں کی اداسی دور کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ پہلے فکرے سے لے کے آخری فکرے تک جو بھی ہے آغا وقار خود ہے۔ جتنا کلام ہوگا، جو فکرے ہوں گے، جو بات پڑھی ہوگی کتاب سے وہ کروں گا، جو شاعری خود لکھی ہوگی وہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ بس اب اضافی بات اب میں نے کوئی نہیں کرنی، بس ذکر جاری ہو ساری۔ جس کا ذکر نسلوں کی اداسی دور کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ آپ کی میں مقروض ہو گیا ہوں آپ کا۔ اگلا فکر بھائی جان اس سے بڑا آ رہا ہے۔ جس کا ذکر نسلوں کی اداسی، لطف لیتے رہنا ہے جب تک فکرہ یاد آئے، نسلوں کی اداسی دور کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو انسان کے ضمیر کو اللہ کرے نوجوان فکرہ سمجھ جائیں، جو انسان کے ضمیر کو اطمینان کا رزق عطا کرے ایسے رازق کو حسین کہتے ہیں۔ بڑا قیمتی ہے وہ بندہ جو ہاتھ اٹھایا ہے جس نے۔ اچھا تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بندے میں ممبر سے اتر کے چلا جاؤں، فتویٰ لے کے میرے گھر تک نہ آ جائیں کہ اس نے حسین تو رازق کہا ہے۔ لو آپ نے خریدا مجھے، میں آپ کی شفا کے لیے، آپ کی شفاعت، مومنین کی شفاعت کے لیے، ہر بندے کی حاجات کی قبولیت کے لیے اگلا فکر کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ نہ بات کرتے، رب کعبہ کی قسم برسر ممبر کہہ رہا ہوں، ممبر قسم کی سید حیثیت رکھتا ہے، آغا وقار یہ فکرہ نہ کرتا۔ اللہ نے سرزمین کربلا پہ کہا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ اسی اللہ نے قرآن میں کہا، کل شیء یرجعی الی الاصل، ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے۔ اللہ نے کہا حسین میری طرف لوٹا، پتہ چلا حسین اسے کہتے ہیں جس کی اصل کا نام توحید ہے۔ حیدری نہیں، اب شاعر کا اندر مطمئن نہیں ہوتا، شاعر کے ساتھ بندے بولتے رہیں وہ راضی رہتا ہے، لیکن وہ اس کی مجبوری ہے جو دو چار بندے خاموش ہو جائیں، یہ ان خاموش بندوں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو بول رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں، جو نہیں بولے اب آپ کے فکرے کی وجہ سے میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے مقتل کی بات کی ہے نا، ملکوت کہہ رہے تھے سرے عرض کربلا، ملکوت فرشتے کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملکوت کہتے ہیں فرشتوں کی جمع کو۔ ملکوت کہہ رہے تھے سرے عرض کربلا، واللہ یہ مصطفیٰ کے نواسے کی جنگ ہے، یکلخت کارزار کا نقشہ بدل دیا، کیسے کریں یقین یہ پیاسے کی جنگ ہے۔ نوجوان کوشش کرو، ہاتھ بلند کرو، بولو حیدری۔ جی ساروں کی طبیعت ہے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، آخری بندے تک مجھے ہاتھ بندے میں نظر نہ آئے، ہاتھ کھول کے بولنا ہے حیدری۔ ملکوت کہہ رہے تھے سرے عرض کربلا، واللہ یہ مصطفیٰ کے نواسے کی جنگ ہے، اور یکلخت کارزار کا نقشہ بدل دیا، کیسے کریں یقین یہ پیاسے کی جنگ۔ نہ چوری نہ نقل نہ رٹی ہوئی بات اگلی کر رہا ہوں۔ جو انسان کے ضمیر کو، ضمیر کھانا نہیں کھاتا۔ یہ جیت مجلس سے آگے ہو کہ احسان کرو نا پتر تے کیا ہو، تساں مینوں ڈھیر سنے ہیں کہ تسی پیچھے بیٹھے چنگے نہیں لگ دینا۔ آؤ یہ دیکھنا آپ کے آنے کی وجہ سے ماحول کتنا خوبصورت ہو جائے۔ چلو، جو میں نے فکرہ سید، جو انسان کے ضمیر کو اطمینان کا رزق دے، ہائے 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 ہائے، آپ کے لطف لینے کا کیا عمل ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اب ضمیر روٹی نہیں کھاتا،
ضمیر کا رزق ہے اطمینان. اطمینان کا رازق تو وہی ہو سکتا ہے نا جسے اللہ کہے نفس مطمئنہ. سلامت رہو سید, سلامت رہو سید, سلامت رہو سید. چلیں بات آگے بڑھے. جو جھولے سے لے کر, اب آپ نے جب دعا کے لیے کہا تو ارادہ بن گیا. جو جھولے سے لے کر, چونکہ ممبر ہی نیچے ہے, کوئی اور موضوع پڑھنا چاہوں تو مجھے بیاض کی ضرورت تھی. آشا جی اب ضرورت پڑتی ہے مجھے, مضمون اتنے ڈھیر آپ کا بیٹا لکھ چکا ہے کہ اب مجھے یہاں نہیں رہتے, اب مجھے دیکھنا پڑتا ہے. یہ خیر ہو چکی ہے آپ کی دعاؤں سے. فانی شاہ کی زندگی ہو, بولتے آنا میرے ساتھ. جو جھولے سے لے کر, آزاد آشا جی, جو جھولے سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کے کربلا تک, کربلا سے لے کے آج تک, آج سے لے کے قیامت تک. ایک مرتبہ پھرتے ہیں, میں ترتیب دہرا رہا ہوں نوجوانوں کے لیے. جھولے سے لے کے جوانی تک, جوانی سے لے کے کربلا تک, کربلا سے لے کے آج تک, آج سے لے کے, کتنا بولو گے, آج سے لے کر قیامت تک, جس سے منسوب ہر چیز شفا بانٹے اسے حسین کہتے ہیں. او ہو ہو, او ہو ہو, جیو زندہ باد. اچھا اب بات میں باوضو ممبر پہ سید کھڑا ہوں, ایک نوکری آل محمد کی بارگاہ میں کر کے آئے ہوں, اگلی جا کے کرنی ہے. اب اگر آپ اسی طرح بولتے جائیں گے, مجھے نہیں پتا میرا وقت یہاں کتنا لگ جائے گا. اگرچہ نام تیرا کربلا ہے, اب آپ بولیں اپنے پنڈال کی ضمانت دیں. سید میرے ساتھ دعا کرنا, جو مومنین بیٹھے ہیں یہ بول پڑیں تو ان کا شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگرچہ نام تیرا کربلا ہے, تیری آغوش میں نور خدا ہے. فضائل کس قدر تیرے بیاں ہوں, تیری تو خاک بھی خاک شفا ہے. نہیں اتنا حق نہیں بنتا تھا, نا نا نا, سوری 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 سوری. بندہ علی والا ہو, حسینی تربیت والا ہو, ماں کی آغوش کی گرمی میں حرارت آئے تو اس کے منہ سے یا علی کا نعرہ بلند ہو, اس بندے سے بات ہے. آج بندے کہہ رہے ہیں اذانوں میں علی ولی اللہ دہشت گردی ہے. میں پوری مجلس اس دہشت گردی پہ پڑھ سکتا ہوں, لیکن چونکہ چہلم کی مجلس ہے اس لیے میں لفظ حسین پہ بول رہا تھا. اب چند نوجوانوں نے بے نیازی کی ہے تو آگا بکار ممبر پہ اپنا حق مانگ رہا ہے. وہ گل کو گل, کلی کو کلی نہیں کہتا, کہ سچی بات منافق کبھی نہیں کہتا. یہ بھانپ لینا کے نعرہ حیدری سن کر وہ دہشت گرد ہے جو یا علی نہیں کہتا. جی ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح, ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح. توپ کے دانا سے آتی تھی صدا یہ بار بار, لافتہ الا علی لا خیب الا ذوقار, نعرہ حیدری. یہ 1965 کی تھی, اب آگا بکار 2020 کی سنا دیتا ہے. ذکر آیا ذوالفقار کا, بات ذوالفقار کی کروں گا اور لفظ حسین پہ رہوں گا. یہ کرم ہے سید. ہاں بزرگوں کا حق تھا ان باتوں پہ مجھے دعا دیتے. بات بھی ذوالفقار کی کروں گا اور موضوع سے بھی نہ ہٹوں. یہ کرم ہے جناب سیدہ کا. خیبر کے میدان میں, اب آپ کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں, خیبر کے میدان میں اللہ نے کہا جبریل علی کی تلوار کا وار اتنا تیز ہے کہ مرحب کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد زمین کے 2 ٹکڑے نہ ہو جائیں. ہو بندے بور ہو گئے تو میں مسائل پہ آ جاتا ہوں. علی کی اب آپ بولنا ہے, آپ نے پنڈال کی ضمانت لینی ہے. اگر آپ نے مجھے چھیڑا ہے محبت سے جواب لیں, پھر آپ نے محبت میں مجھے چھیڑا ہے, محبت کا جواب محبت سے لو. جبریل جلدی جا, علی کی تلوار اتنی تیز ہے, وار اتنا تیز ہے, زمین کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اگر تلوار زمین سے لگ گئی. کتابیں کہتی ہیں جبریل پرواز کرتا ہوا آیا, جبریل نے پر پھیلائے, جبریل کے پروں سے تلوار لگی رک گئی, جبریل کے پروں سے تلوار لگی رک گئی. میں شاید تھا اندر مطمئن نہیں ہوا, میں نے کہا جس تلوار نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے, جو تلوار زمین کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہے, جبریل کے نرم و نازک پروں سے لگ کے رکی کیسے؟
अल्लाह तुम पे राजी हो, बीबी आपसे राजी हो, दुआएं ज़हन में रखना, रियायती नंबर नहीं, बात मुझे मेरे मिसरे के फिक्रे के मियार पे चाहिए होगी। मैंने कहा जिब्रील के नर्मो नाजुक परों से लग के, सैयद अपनी दुआ देखना, जिब्रील के नर्मो नाजुक परों से लग के रुकी कैसे, किताब का फिक्रा आगे बढ़ा। आगा बकर खामोश, ये अली की वही तलवार है, जब अली जंगों से वापस आया करते थे, जनाब ज़हरा इसी तलवार को उठा के पूछा करती थी, बता आज अली मैदान में लड़ा कैसे है। ओए होए होए होए, फैसला घर जाके करना, अगर लोहे दिल पे कोई बात असर कर जाए फिर फैसला करना। आगा बकर किसने हज पे पढ़ा था, मैंने एक दावा किया है, बात अली की तलवार की होगी, मौजू हुसैन ही रहेगा, बात अली की जुल्फ़िकार की होगी, मौजू हुसैन ही रहेगा। मैंने कहा ये वही तलवार है जो बीबी सैयदा से बातें करने वाली ज़बान रखती है, जो बीबी से बातें करने वाली ज़बान रखती है, यकीनन अक्ल भी रखती है। ओ हो, जिंदाबाद, अल्लाह आपको जिंदगी दे। उठे हुए हाथों का शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सारे बोला करो यार। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अली शहंशाह बादशाह मुश्किल खुशहाल शेर खुदा, अली रख कमल परेशान के कुरान अली आने जान, अली मेरी जान, अली दा मैं नौकर, अली सावधान, अली कुल्ले ईमान, अली तेरा ईमान, अली मेरा ईमान। नारे हैदरी, हैदरी, सारे सारे सारे। अली मौला, अली मौला। अच्छा, आप इतना खूबसूरत नारा लगाएं और मैं आपके लिए 4 मिसरे न पढ़ूं। उनकी सफेद दाढ़ी है, फयाजा जी गौर कीजिएगा, मैं फिक्रा पढ़ रहा हूँ। गदीर खुम पे जो बंदा ईमान रखता है, वो ला मकान का दिल में मकान रखता है। नौजवान कब तक खामोश रहेंगे? वो ला मकान का दिल में मकान रखता है, बुढ़ापा आएगा कैसे मवालियों के करीब, अली का नाम हमेशा जवान रखता है। ओहो, जिनके अंदर है जवानी वो बोलो, जिनके अंदर अली की दी हुई जवानी है बोलो हैदरी, जिब्रील के बात याद है, जिब्रील के नर्मो नाजुक परों से लग के तलवार रुकी कैसे। मैंने कहा ये तलवार जो बीबी से बातें करने वाली जबान रखती है, इसने कुछ ना कुछ सोचा है, कुछ ना कुछ सोच के जिब्रील के परों को छोड़ा है। आवागा बकार बरसर मिंबर कह रहा है, अगर आपका इतना अच्छा माहौल ना होता आज ये 4 मिसरे पढ़ने का इरादा ही नहीं था। मैं कह रहा हूँ मजाल किसकी है रोके अली की जरबत को, मजाल किसकी है रोके अली की जरबत को, चले ये जिस पे यकीनन वो गर्क होता है, ये बात सोच के तलवार रुक गई फौरन, यही वो पर है कि जिस पर हुसैन सोता है। ओ हो, जो हाथ नीचे उसकी आपकी क्या बात है, आपके क्या कहने, अली वालों के क्या कहने। जो मौजूद सिंह पढ़ना चाह रहा था उधर बात कहीं और चली गई थी, आज मैं रुक के बात कर रहा हूँ। आपकी क्या बात है, मौला इज्जत सेहत से नवाजे, जिससे मंसूब हर चीज शिफा बांटे। बात याद है ना, उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं। फिक्रा इससे बढ़ के कहूं, हर गरीब के चेहरे की रौनक को हुसैन कहते हैं। ओए होए होए होए, ओ हो। अच्छा चलें यार, रुक गए तो मैं बात करता हूँ। बुजुर्गों से दुआएं दी, जितने बैठे हो सैयद आपसे राजी हो, बुजुर्गों से दुआ, नौजवानों से दात। 3 शाबान हुसैन दुनिया में आ गए। जिब्रील चले फरिश्तों को साथ लेकर मदीने की जानिब। रास्ते में एक जंगल था, बियाबान था। अज़ादार शादी मजमून सुन रहे, बियाबान था, वीराना था, जंगल था। उस जंगल में जिब्रील को एक मरीज नजर आया। ओहो आए है, मैं रुबाई मुकम्मल कर रहा हूँ। एक मरीज नजर आया, जिब्रील जमीन पे आया, उस मरीज से बातें की। अब इधर उधर नहीं, हुसैन का वास्ता फिक्रों में देखना। जिब्रील ने उस मरीज से बातें की। बातें करने के बाद जिब्रील कहता है, उसलूबे सुखन तेरा अनोखा है, हंसी है। हाँ कम बंदे बोले हो, मैं मुश्किल बात कर रहा हूँ। जिब्रील कहता है, उसलूबे सुखन तेरा अनोखा है, हंसी है, लगता है तबीयत में बड़ा खंदा जबी है। तेवर ये बताते हैं यहाँ का भी नहीं है, अल्लाह ना भुलाए कहीं फुतरस तो नहीं है।
सारे आखिरी बंदे तक बोला करो यार। अल्लाह जनाब जरा खोल के पढ़ो सी मोहतरम नकवी ने सुनना है बंदे यार। नारे रिसालत आपने बहुत बड़ा नाम लिया और मुझे अंदर से बेदार कर दिया आपने। जनाब सैयद आपसे राजी हूँ। अच्छा, अगर जुल्फों से मोहसिन याद आया है, अगर लफ्जों से याद ना आए तो फिर मुझे खैरात नहीं मिली। ओए होए होए होए, अब आपने मेरे साथ रहना है, अब मेरा साथ ना छोड़ना, हुसैन का वास्ता है। उसलूब सुखन तेरा अनोखा है, हसी है। अब देखना भाईजान, लगता है तबीयत में बड़ा खंदा जमी है, तेवर ये बताते हैं यहाँ का भी नहीं है। अल्लाह न भुलाए कहीं फुतरस तो नहीं है। फुतरस ने जले हुए पर संभाले, उसने कहा जिब्रील भाई तूने पहचान लिया, मैंने भी तुझे आते ही पहचान लिया था, लेकिन मैं ऐसी हालत में था, मैं तुझे खुद नहीं बताना चाहता था कि मैं वही फुतरस हूँ जो बहुत बड़ी परवाज किया करता था, जो बहुत बुलंद परवाज किया करता था। अल्लाह ये उठे हुए हाथ सलामत रखे, जो बड़ी ऊंची परवाज किया करता था, आज मेरे पर जले हुए हैं। मैं वही फुतरस हूँ, जब कहा ना वही फुतरस हूँ, जब कहा वही फुतरस हूँ। जिब्रील कहता है तुम मिल जो गए हो, तुम मिल जो गए हो तो बड़ी बात हुई है, इस यौम मुबारक पे मुलाकात हुई है। बीबी आपसे राजी हो, सैयद आपसे राजी हो, सैयद आपसे राजी हो। अब यहाँ से नौकरी पेश कर रहा है बता, तुम मिल जो गए हो तो बड़ी बात हुई है, इस यौम मुबारक पे मुलाकात हुई है, इस यौम मुबारक पे मुलाकात हुई है, इस यौम मुबारक पे मुलाकात, भूला बिल्कुल नहीं, इस यौम मुबारक पे मुलाकात हुई है। फुतरत सड़क के कहता है जिब्रील भाई आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है। जिब्रील कहता है कि परेशान ना हो, घबराना नहीं है, आज ला इलाज मरीजों की शिफा बन के हुसैन दुनिया में आ गया है। थकना नहीं, थकना नहीं, वास्ता हुसैन का। अब आपने थकना नहीं, मैंने अगली मजलिस की परवाह नहीं की कि मेरा जोर यहाँ कितना लगता है, अगले जोर के लिए बचता हूँ नहीं बचता। ये हुसैन की इज्जत का वास्ता है, मेरे साथ रहना, हुसैन की खैरात आप तक पहुँचा रहा हूँ। तुम मिल जो गए हो तो बड़ी बात हुई है, इस यौम मुबारक में मुलाकात हुई है। बेला तशबीह सारी नस्ल छोड़ के जनाब जिब्रील ने जनाब फुतरस को अपने परों पे सवार किया। फिक्र आ रहा है वसूल करना, परों पे सवार करते परवाज करता हुआ मदीने की तरफ आ रहा था। लुत्फ लेना, परवाज करता हुआ मदीने की तरफ आ रहा था। जैसे ही मदीने की हदूद शुरू हुई जमीन पे उतर आया। थकना ना, अब नहीं थकना। मिन्नत एक ही है, बात अच्छी लगे तो सर नहीं हिलाना, जबान से तायद करना और हाथ से तायद करना। मदीने की हद शुरू हुई, जमीन पे उतर आया। बड़ी कीमती बात करना चाहता हूँ, जमीन पे उतर आया। सफर करते करते, गलियों का सफर करते करते वहां आए महल्ले बनी हाशिम। महल्ला बनी हाशिम, जिस गली से इस्लाम निकला था। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। महल्ला बनी हाशिम, भाईजान बात कर रहे हैं आगा बका। महल्ला बनी हाशिम में जिब्रील और फुतरस, पीछे हजारों फरिश्ते। एक लम्हे के लिए फुतरस ने रोका, कहा जिब्रील भाई रुक जा, बेशक यहाँ तू लाया है, एक सवाल करना चाहता हूँ। जिब्रील कहता हाँ सवाल कर। उसने कहा जिब्रील भाई तू भी नूरी, मैं भी नूरी। फरिश्ता नूरी होता है, घबराने की क्या बात है। जिब्रील भाई तू भी नूरी, मैं भी नूरी। फुतरस कह रहे हैं देखो मुझे, तू भी नूरी, मैं भी नूरी। जिब्रील भाई मैं नूरी होकर कह रहा हूँ, जो नूर इस महल्ले में नजर आ रहा है मैंने अर्श पे भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो नूर, पीछे हरकत नहीं होनी चाहिए कोई, आपकी वजह से बंदे आपको देखते हैं, हुसैन का वास्ता, नाराज ना होना। तू भी नूरी, मैं भी नूरी। जिब्रील भाई नूरी हो के कह रहा हूँ, ऐसा नूर नहीं देखा। अच्छा लेके बाद में जाना, पहले इस नूर का तारुफ तो कराना। भाई पहले इस नूर का तारुफ तो कराओ। जिब्रील मुस्कुरा के कहते हैं तौहीद जलवागर है, नजारा हुसैन है। अब जिसका हाथ नीचे है मुझे अंदर से दुखी किया उस बंदे ने। नूर का तारुफ है महल्ला बनी हाशिम में, 3 शाबानुल मुअज़्ज़म है। जिब्रील मुस्कुरा के कहता है तौहीद जलवागर है, नजारा हुसैन है।
बेचारगी के दौर का चारा हुसैन है, दीन खुदा का खास सहारा हुसैन है, मेरे नबी का राज दुलारा हुसैन, मेरे नबी का राज दुलारा हुसैन है। जिब्रील कहता है दुनियाए मवद्दत में, दुनियाए मवद्दत में, दुनियाए मवद्दत में ग़िज़ा बांट रहा है, दारैन में शब्बीर शिफा बांट रहा है। सारे जवाब दिया करें। लो जी, यहाँ तक आप तैयार हो। दारैन में शब्बीर शिफा बांट रहा है, दारैन में शब्बीर शिफा बांट रहा है। साइल हूँ तेरा तुझसे अता मांग रहा हूँ, खुशबख्त बड़ा हूँ कि विला मांग रहा हूँ। घेरा है बीमारी ने मुझे मेरे मसीहा, फितरस की तरह तुझसे शिफा मांग रहा है। दारैन में शब्बीर शिफा बांट रहा है। जहाँ खड़े हो सैयद राजी हो। बात सैयद अब करना चाहता हूँ, जो मजमून का दिल है मुसद्दस अब पढ़ना चाहता हूँ, जो मेरे इस मजमून की जान है वो आपके हवाले करना चाहता हूँ। जिब्रील फितरस को लेके सहने सैयदा में आया, मंजर वहां लेके जाना, सहने सैयदा में आया। बिलाल भाई जिंदगी हो, बात वहां तक दिल तक जाए तो बोलना। सहने सैयदा में आया, एक तरफ रसूल एक तरफ अली, झूले में वो सो रहा था जो इस्लाम की तकदीर लिखने वाला है। हाय हाय, कौन खरीदेगा इन लफ्जों को और कौन कीमत अदा करेगा इनकी। झूले में वो सो रहा था जो इस्लाम की तकदीर का कातिब है, जो इस्लाम की तकदीर लिखने वाला है, जिसे आम जबान में हुसैन कहते हैं। होए 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 होए, मैंने जुमला जल्दी से कह दिया। एक तरफ रसूल एक तरफ अली, झूले में हुसैन सो रहा। 3 शबानी, झूले में हुसैन सो रहा, झूले में हुसैन सो रहा। जिब्रील फितरस को लेकर रसूल के पास आया, आके कहता है या रसूल अल्लाह, दूसरी बार ये फिक्र कह रहा हूँ आज, या रसूल अल्लाह मेरी तरह ये भी सवाली है। हा हा हा, ओ हो, मेरी तरह ये भी सवाली है, मेरी तरह ये भी सवाली है। अब फितरस रसूल के सामने आया, सर झुका हुआ और रो रहा है। बात का ताल्लुक इसका मुझे देखने से है। फितरस रो रहा है रसूल के सामने, फितरस रो रहा है रसूल के सामने, फितरस रो रहा है रसूल के सामने। रोते रोते फितरस कहता है मौला मुद्दत से बिया बाँ में था बे यारो बे नवा। छठे मिसरे तक तो आने दो मुझे। कहता है मौला मुद्दत से बिया बाँ में था बे यारो बे नवा। पहली 2 लाइनें फितरस ने कही हैं, अगली 2 लाइनें रसूल ने कही हैं, और उससे अगली 2 लाइनों में नतीजा है। रोते रोते फितरस कह रहा है मौला मुद्दत से बिया बाँ में था बे यारो बे नवा, हमदर्द नजर आता था ना कोई मसीहा, हमदर्द नजर आता था ना कोई मसीहा। फितरस की बुका सुनते ही सरवर ने ये कहा, काटी है अपने जुर्म की तूने बड़ी सजा। अब नहीं, अब पहले अली वाले से लेके आखिरी बंदे तक ज़हनों को मदीना ले जाओ। बंदा हुसैनी हो, हुसैन का दिया हुआ रिज़्क खाता हो, वो छठे मिसरे पे ना बोले आगा वकार का अकीदा गवारा नहीं करता। फितरस रोते रोते कहता मौला मुद्दत से बियाबा में था बेयारो बेनवा, हमदर्द नजर आता था ना कोई मसीहा। फितरस की पुकार सुनते ही सरवर ने ये कहा, काटी है अपने जुर्म की तूने बड़ी सजा, सर उठाना। फितरस रो रहा है, रसूल कहते हैं काटी है अपने जुर्म की तूने बड़ी सजा, सर उठाओ। रसूल कहते हैं अब आ ही गए हो यहाँ, रोना तो बस करो, तुम अपने पर हुसैन के झूले से मस करो। ओ हो।
घबराए तो नहीं बैठ जी। घर जाके सोचें, आपने मुझे दुआ दे दी है जी, मैं फिक्रा पढ़ता हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मिंबर खुद कसम की हैसियत रखता है, बावजू खड़ा होकर कलमा तौहीद, रसालत और विलायत की गवाही दे के अदा शाह जी आगा वकार इतनी कस्में उठा के झूठ बोलूं सैयदा का मुजरिम हूँ। अगर आप ये बात ना करते मैं ये मिसरे ना पढ़ता, मैं ये मिसरे ही ना पढ़ता। बज़्म हस्ती को अगर बज़्म विला मिल जाए, बज़्म हस्ती को अगर बज़्म विला मिल जाए, इबादतों की बिला फसल जजा मिल जाए, ऐसा बीमार मुकद्दर का धनी है कि नहीं जिसको शब्बीर के झूले से शिफा मिल जाए। अल्लाह अकबर, खुदा जाने कौन बंदा क्यों खामोश है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जाने चंद नौजवान क्यों खामोश हैं। दोनों हाथों से सलाम करो हुसैन को, हैदरी। मेरे नाल ही पढ़ रहे। पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने, पर को 2 दफा इस्तेमाल किया गया। पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने, सीरत सरवर आलम से सदा मिलती है। और ताजियादारी को मत शिरक समझना लोगों, हमसे मंसूब वो लकड़ी तो शफा मिलती है। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अब आप चाहते हैं कि मैं शायद अगली जगह ना जाऊं। बैठे, सदफ को ज़र्फ़े समंदर हुसैन देता है। होए 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 हो, मिश्रा खा गया आपका पिंडाल मेरा। अब आप चंद बंदे ही बोलो, आपने मुझे मोहसिन नकवी की याद दिलाई है ना, अब आप ही बोलो, मैं राजी हूँ। सदफ को ज़र्फ़े समंदर हुसैन देता है, सदफ को ज़र्फ़े समंदर हुसैन देता है कि बेज़रों को अबू ज़र हुसैन देता है। अगरचे खालिक़े कौनैन खल्क़ करता है तो बेपरों को मगर पर हुसैन। नहीं 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 यार, जिसे हुसैन से कुछ चाहिए वो बोलो, मिलके दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सारा के लाल पे बुलंद सलाम। ਜ਼ਾਕਰੀ ਔਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਹੋ ਬੋਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਾਕਰਾ ਜੀ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿਣਾ। हाय हाय। सदफ को ज़र्फ़े समंदर हुसैन देता है, ज़र्फ़े समंदर हुसैन देता है। एक एक फिक्रा, एक एक किताब जितनी तशरीह करे तो फिर हक बनता है बोलने का। अब आप वहाँ से आए हैं ना, तो मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ सदफ को ज़र्फ़े समंदर, नहीं तो बात इससे आगे मौजूद है। हो अभी आगा वकार ने डायरी नहीं खोली, बात इससे आगे मौजूद है। सदफ को ज़र्फ़े समंदर हुसैन देता है कि बेज़रों को अबू ज़र हुसैन देता है। अगर से खालिक़े कौनैन खल्क़ करता है तो बेपरों को मगर पर हुसैन दे। अच्छा चलो चलो, बात नहीं खत्म हो गई, मौला आपको सलामत रखे। जिब्रील ने अपने परों को हुसैन के झूले से मस किया। आपने फिक्रा दोहराया था जी, हुसैन के परों से मस हुआ है, हुसैन से नहीं हुआ। अब ये नूरी था, इसलिए रसूल ने कहा झूले से मस हो जा। हाय हाय हाय, फिक्रा यहीं पे आया है, ये खैरात है बीबी की। ये नूरी था, इसीलिए रसूल ने कहा, मेरा अकीदा कहता है, जिसका अकीदा मेरे साथ ऐसे है वो बोले। ये नूरी था, इसलिए हुसैन से, इसलिए रसूल ने कहा कि हुसैन के झूले से अपने परों को मस करो। अगर कोई खाकी होता तो यकीन रसूल कहते हुसैन के झूले के नीचे से मट्टी ले जा। हाय 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 हाय, अल्लाह जाने कौन बंदा क्यों खामोश है। मस हुआ बिला तशबीह, हुसैन के झूले से मस हुआ। अब मैंने देखना है किसके चेहरे की रंगत बदलती। फिक्रा वो कह रहा हूँ जो यहाँ पे आया है, झूठ बोलूं बीबी का मुजरिम। हुसैन के झूले से जिब्रील फुतरस मस हुआ, परों की रंगत बदल गई। ओए 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 ओए, नहीं 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 आदा जी, ना ना इंज नहीं, इतना बड़ा दावा करके मेरा साथ में छोड़ो यार।
फुतरस जीते रहे। फुतरस हुसैन के झूले से मस्त हुआ, परों की रंगत बदल गई। जिब्रील देख रहा था, उसने कहा परों की रंगत तो बदली, फुतरस तेरे मिजाज भी बदल गया। तेरा बस ये दहलीज से बाहर निकला, खामोशी से उस महल्ले से बाहर निकला, फिर परवाज शुरू हुई। एक मर्तबा जिब्रील को देख के कहता मम्मी सली है कोई मुझ जैसा। अब जिसे तारीख आती है वो बोलो यार। नौजवान सर हिलाता अच्छा नहीं लगता, नाराज ना होना, ज़बान से बोला करो या हाथ उठाया करो, बस यही मेरी मजमे से तवक्को होती है। परवाज की कहा मम्मी सली है कोई मुझ जैसा, है कोई मुझ जैसा। परवाज करता है, जिब्रील करीब आया, फुतरस तेरा सिफारिशी बन के गया था, मैं तेरा आपकी क्या बात है, मैं तेरा सिफारिशी बन के गया था। जिन्होंने शिफा दी वो भी सुन रहे हैं, जिसने सजा दी थी वो भी सुन रहा है। ओए होए 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 होए, जिसने सजा दी वो भी सुन रहा है, जिनकी वजह से शिफा मिली वो भी सुन रहे हैं, और मैं सिफारिशी हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। करीब से दोनों परवाज जारी थी। उसने कहा जिब्रील भाई तू मेरा सरदार है, मैं मानता हूँ, लेकिन तू जो कह रहा है मैंने आज तक ऐसा दावा नहीं किया। जिब्रील भाई माफ़ी से तेरा बनता ही नहीं है। ओए होए 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 होए, अब काफिया दोबारा आ रहा है मस्का। उसने कहा तेरा बनता नहीं। जिब्रील मुस्कुराया, उसने कहा अच्छा फुतरस भाई तेरा कैसे बनता है? उसने कहा जब मैं पहले ये दावा कर चुका था, जब मुझे सज़ा मिली उस वक्त मेरे पास दलील नहीं थी, अब मेरे पास दलील है। अब तुम थक गए हो, मेरे पास बात ख़त्म नहीं हुई, आप थके हैं, मेरे पास बात जारी है। तो जी मैं पहले दावा था, दलील नहीं थी, अब दावा भी है दलील भी है। उसने कहा कौन सी दलील है? उसने कहा पहले सिर्फ फरिश्ता था, अब जाकिर हुसैन हूँ। आपकी खैर हो, आपका शुक्रिया, मौला सलामत रखे, दुआएं कबूल करे। फिर जिब्रील मुस्कुराए। आपको पता है, आप शेखुल अज़ीम आप जानते हैं, दीगर बुजुर्ग भी जानते हैं, एक ही बात को लेके चलते रहना मुश्किल बात है। ठीक, ये जाकिरी में जिसको खैरात और दुआ मिली हो ना, ये बस उसी का काम है। अच्छा खैर, जिब्रील मुस्कुराया, उसने कहा अच्छा दलील तो ऐसी है कि मैं भी रद्द नहीं कर सकता। तू जाकिर हुसैन है, मैं आशिक हुसैन हूँ। अल्लाह अकबर। अब नहीं दाद मांगूंगा, अब नहीं दाद मांगूंगा, आप सलामत रहें। तू जाकिर हुसैन, मैं आशिक हुसैन। जाकिर हुसैन भी मौजूद हो, आशिक हुसैन भी मौजूद हो और जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। जिब्रील भाई मैं जिक्र सुनाता हूँ। जिब्रील कहता है अच्छा जिक्र सुना और दावे की वजह भी बता, दावे की वजह भी बता कि तूने फिर क्यों कहा मम्मी सली। 5वें छठे मिसरे में दावे की दलील है फुतरस के। फुतरस मुस्कुरा के कहता जिब्रील भाई मुझे हुसैन ने शिफा नहीं दी, मुझे हुसैन ने शिफा नहीं दी, मुझे दी है हुसैन के झूले ने शिफा। थक जाओ तो तुम्हारा अपना मुकद्दर जी, आपकी खैर हो, जिंदगी हो, मौला हुसैन राजी हूँ। तो क्यों ना जिब्रील भाई मैं झूले का जिक्र सुनाऊं। हाय 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 हाय, मैंने शहजादा अली असगर का झूला अलग से लिखा है, ये हुसैन का झूला पढ़ रहा हूँ। हाय हाय हाय, जिब्रील भाई मैं तुझे झूले का जिक्र ना सुनाऊं? जिब्रील कहता है हाँ। मुस्कुरा के फुतरस कहता है खालिक का इम्तिजाज है शब्बीर का झूला। थक गए हो, थक गए हो। खालिक का इम्तिजाज है शब्बीर का झूला, खालिक का इम्तिजाज है शब्बीर का झूला।
फुतरस है, जिब्रील है, हजारों फरिश्ते हैं, 3 शाबान है। फुतरस को नए सिरे से पर मिले हैं, मिजाज बदल गया है, फिर परवाज करता हुआ कह रहा है, मम इसलिए अब दुआएं ज़हन में रखो, आगा वकार फिक्रा कह रहा है, जब गाना खालिक का इम्तिजाज है शब्बीर का झूला। फुतरस कहता है खालिक का इम्तिजाज है शब्बीर का झूला, और बेकसों की लाज है शब्बीर का झूला, दुख दर्द का इलाज है शब्बीर का झूला, कुदरत का हम मिजाज है शब्बीर का झूला। नहीं यहाँ पर मान लगा माफी से शेवपुरी नाराज ना रहना, मैं नौकरी तुम्हारी पूरी की थी। 4 दावे, 5वें छठे मिसरे में दलील। खालिक का इम्तिजाज है शब्बीर का झूला, और बेकसों की लाज है शब्बीर का झूला, दुख दर्द का इलाज है शब्बीर का झूला, कुदरत का हम मिजाज है शब्बीर का झूला। जिब्रील भाई फुतरस बता रहा है मेरे दावे की दलील क्या है, मेरे दावे की वजह क्या है, मैंने फिर क्यों कहा है कोई मुझ जैसा। जिब्रील सुन रहा है, फुतरस के दर बेकसों की इलाज है शब्बीर का झूला, कुदरत का हम मिजाज है शब्बीर का झूला। सर उठाना, फुतरस कहता है मुझसा है कोई और, मुझसा है कोई और, मुझसा है कोई और, मुझसा है कोई और, ये कहना अबस हुआ, वो मैं हूँ जो हुसैन के झूले से मस हुआ। मैं खसारत की माफी चाहता हूँ। फुतरस कहता है कि बख्शे मुझे पर रुखे अनवार जली ने, बख्शे है मुझे पर रुखे अनवार जली ने, उड़ने का दिया इज़्न उड़ानों के वली ने। इस नूर की महफिल में कोई मुझसे कहाँ है, आजाद किया मुझको हुसैन इब्न अली ने। हाय दरी, हाय दरी, हाय दरी, हाय दरी। जीते रहे सैयद, आपको मौला इस जिक्र के सदके शिफा दे। आपने मुझे सुनाए हैं 4-5 शायर, मैंने जो सुनाया है वो मैं अकेला हूँ, और बात नहीं खत्म हुई। फुतरस को पर मिले, लो आखिरी रुबाई चंद मिनट में कर। फुतरस को पर मिले, परवाज करता हुआ, दावा वही था, दावा वही था, दावा वही था, दलील दूसरी दे रहा है। कहता जहां ने उक्ता कुशाई को चैन देता है, हाय हाय हाय, जहां ने उक्ता कुशाई को चैन देता है, वो कायनाते मवद्दत को ज़ैन देता है। अब आपके कुंडाल से मैं मुतमईन नहीं हूँ, दुआ जरूर दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरह बेदार बोलना चाहिए वो 4, 5, 10 चेहरे ही हैं मेरे सामने। अब नौजवानों नाराज न होना, बात मैं सबसे कीमती कर रहा हूँ। जहां ने उक्ता कुशाई को चैन देता है, वो कायनाते मवद्दत को ज़ैन देता है। फुतरस कह रहा है वो कायनाते मवद्दत को ज़ैन देता है। खुदा से मांगने वालों हुसैन से मांगो, खुदा से लेके हमेशा हुसैन देता है। तेरे खुलूसो मोहब्बत तेरी वफा की कसम, तेरे खुलूसो मोहब्बत तेरी वफा की कसम, तमाम साल तेरा जिक्र आम रहता है। सुभान मेरे वजूद से कायम है जिंदगी का वकार, हुसैन तुझको ज़माना सलाम कर। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰੱਬ अगर मुस्तहिक हूं मैं किसी इनाम का। अब मिन्नू वाले तक इनाम कोई भी नहीं मिले है। या रब अगर मुस्तहिक हूं मैं किसी इनाम का, या रब अगर मुस्तहिक हूं मैं किसी इनाम का। हाँ मौलाना साहब स्वाद मैं आपका कार्ड लेके जाऊँ। या रब अगर मुस्तहिक हूं मैं किसी इनाम का, हाथ में जूता हूं मेरे सर यजीदी जाम का। नाराए हैदरी। या रब अगर मुस्तहिक हूं मैं किसी इनाम का, हाथ में जूता हो मेरे और सर यजीदी जाम का। हाथ में जूता हो मेरे और सर यजीदी जाम का। नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अलंतर
ने कमाल किया, आपने खरीद लिया मुझे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, मौला उनके दर्जात बुलंद करे। ते परचे वाली गल्लां मैं स्पीकर को कोई नहीं कर रही। अच्छा चलो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा चलो मैं पर्दे से गुजर जाता हूँ। अगर दुआएं सभी पुरतपाक हो जाएं, अगर दुआएं सभी पुरतपाक हो जाएं, तो फिर जजाएं बड़ी ताबनाक हो जाएं। ऐ मेरे बारहवें मौला ज़हूर फरमाएं, फदक के सारे लुटेरे हलाक हो जाएं। तो गल ठीक है। मौला हुसैन आपको सलामत रखे। मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है। किबला की आमद तक चंद मिनट फिक्रे मस। हर चीज़ फज़ाइल में अच्छी लगती है। आपकी लतीफ़ बातें सुनना, लतीफ़ बातें करना। गरीबों का गम गरीब बन के किया जाना चाहिए, गरीब बन के सुनना चाहिए। आप मौजूद थे सैयद, 3-4 दिन से ये फ़िक्रा कह रहा हूँ, और 3-4 दिन से इस फ़िक्रे में पता नहीं क्या दर्द है। हुसैन का चहलुम है। मैं फ़िक्रा कहना चाहता हूँ। सैयदों से दुआ लेके, सैयदों से माफ़ी मांग कर, मातमियों से माफ़ी मांग कर, बात दिल तक असर करे तो हाथ सीने पे मार लेंगे। हाय आपके इख्तियार में है, आंसू सैयदा की खैरात है। किसी जाकिर की ज़रूरत नहीं किसी को रुला सके। ये आपका रिश्ता है आले पैगंबर से जो रुलाता है। फ़िक्रा दर्द भरा कहना चाहता हूँ। अजीब मुकद्दर है अली की बेटी का, अजीब गुर्बत है अली की बेटी की। जिस अली अकबर को 18 बरस बुरके में पालती रही, उसी के कातिल के साथ सफ़र कर जिसे बुरके में पालती रही। बड़ा मातम का फिक्रा था, उसी के कातिल के साथ सफ़र करती रही। सैयद सज्जाद के पास एक शख्स आया। आज कहने लगा मौला मेरे बेटे की शादी है, सारे ख़ानदान कबीले की और मेरी हसरत है, आप शादी में शामिल हो। सैयद सज्जाद की आंखों से खून जारी हुआ। रो के कहा हाय अली अकबर। इतना तो कह सकते थे ना आप भी, हाय अली अकबर। सैयद सज्जाद ने रोना शुरू किया। मौला हक बनता है मातमियों का, सैयदों का ऊंची आवाज से रोना। मौला मैं शादी की दावत के लिए आया हूँ, मौला आप क्यों रो रहे हैं? सैयद सज्जाद रो के कहते हैं जब से अली अकबर गया है शादियाँ अच्छी नहीं। कदमों पे हाथ रखा, कहते मौला हसरत बड़ी है, आप आ जाएं, कोई ऐसा रास्ता निकालें कि आप मेरे बेटे की शादी में आ जाएं। चंद मिनट सैयद खामोश रहे। अब आपकी आंखें मोतर हैं सैयदों की, इस नौकर के हक में दुआ करना मैं फ़िक्रा कहता हूँ। सैयद सज्जाद कुछ देर खामोश रहे। कुछ देर खामोश रहने के बाद सज्जाद रो के कहते हैं एक काम करता है तो मैं आ जाता हूँ। कहते मौला जी जो आप कहेंगे मैं करूँगा। कहते हैं मुमकिन है कि जब तेरे बेटे को सेहरा लगे, उससे सेहरा लगने से पहले मेरे भाई अली अकबर की शहादत। अगर मेरे वीर अली अकबर की मजलिस हो तो मैं आ जाऊंगा। जितने रो रहे हो सैयद आदम से राजी। मैं हुसैन का सबसे छोटा जाकिर हो के दुआ दे के जा रहा हूँ। सर पे मातम करने वालों हुसैन का अली अकबर तुम्हें राजी रखे। अगर दारो वक्त करीब आया, सैयद सज्जाद उसके घर गए। उसने कि इन बच्चों को अब बिठा दो, मसाइल है, बैठ जाओ बेटा। सैयद सज्जाद सैयद सज्जाद उसके घर आए। एक मसनद लगी हुई थी,
मसनद पे सज्जाद तशरीफ़ फरमा हुए। जब अरब के दस्तूर के मुताबिक शादी का वक्त करीब आया, उससे पहले एक जाकिर खड़ा हुआ, उसने जाकिर का एहतमाम किया था। उसने अली अकबर का नाम लिया, सज्जाद धाड़े मार के रोने लगा। अब हाय करना मातम का फिक्र है, सज्जाद मातम करने लगे। जल्दी से जिसके बेटे की शादी थी उसे करीब बुलाया, करीब बुला के कहा ये चिराग बुझा दो, चिराग बुझा दो। चिराग बुझाने का नाम आया, कदमों पे सैयद गिरा, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भर गई है, बीबी आपसे राजी हूँ। कदमों पे गिर के कहते हैं मौला चिराग बुझाने की वजह क्या है? सैयद सज्जाद खून रो के कहते हैं ये चिराग जल रहा है, जाकिर पढ़ रहा है अली अकबर की जवानी का मातम, जाकिर पढ़ रहा है अली अकबर की शहादत। मैं नहीं चाहता मैं कोई ऐसा चेहरा देखूँ कि जाकिर अली अकबर का मसाइब पढ़े और कोई अली अकबर का मसाइब सुन के आंसू ना बहाए। मैं सज्जाद ये बर्दाश्त नहीं करता। आज़ादारों, उसने चिराग बुझा दिए, बड़ा पुरसा हुआ, बड़ा मातम हुआ। कुछ देर के बाद चिराग जलाए गए। देखा मसनद पे सैयद सज्जाद मौजूद नहीं थे। आखिरी फिक्रा है नौजवानों, सीने पे जरूर हाथ मारना। आज़ादारों, देखा सैयद सज्जाद मसनद पे मौजूद नहीं थे। उसने सज्जाद को ढूंढना शुरू किया। देखा मौला सज्जाद घर के दरवाजे पे खड़े हुए थे और हर आने जाने वाले का शुक्रिया, ये मातम की बात है ना, हर आने जाने वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तड़प के कहता मौला आप मसनद पे बैठ थे, आप यहाँ खड़े हो के मेहमानों का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? दर्द भरा फिक्रा कहा। सैयद सज्जाद ने सर झुका हुआ था और रो के मातम करके सज्जाद कहते हैं जब तक इन्होंने अली अकबर का मातम नहीं किया था उससे पहले ये तेरे मेहमान थे। अब जब से जिसने अली अकबर की जवानी का मातम किया, जिसकी जबान से हाय अली अकबर निकला, मैं सज्जाद उसका शुक्रगुजार हूँ। इसने हमारे यूसुफ को अब मातम करो ना, आले मोहम्मद को रोने वालों, इसने हमारे यूसुफ को जीन से उतरते नहीं देखा। इसने हमारी पुत्रियों को करबला की सरजमीन पे पत्थरों से मातम करते नहीं देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।